थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। और सबको पता है ये कोविड का टाइम चल रहा है और सिचुएशन क्या कैसे है मार्केट पे सबको तो पता ही है। तो लेकिन अवेक आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि हमारे साथ आप रजिस्टर होइए। आपको इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन होता है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो ये सारे चीजों को हम लोग एक ग्रूम करते हैं बच्चों को। हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे क्या बोला जाएगा, तो बच्चों को वो सब सिखाते हैं। तो ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जो जो आपको इंटरव्यू मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन का आपको एक सेशन प्रोवाइड कर रहा है वंस यू रजिस्टर विद अस। ओके, सो ओके, मैं सबका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी कि थोड़ा मतलब एक एक करके सबका थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगी। सो प्रियांशु, लेट्स स्टार्ट इट। Yeah, ma'am, sure. ओके, आई गो फॉर दीपक कुमार। Okay. Hello, Deepak. Please raise your hand. हेलो दीपक। Yes, ma'am. ओके, बच्चा से अबाउट योरसेल्फ a bit so that I can know. Myself, Deepak Kumar. Just I am reading in Khandoli Institute of Technology, which is located in Giridih. I had completed. Just I am appearing, and so I am just completed my fourth sem, and I am in fifth sem. I am Oh, from Latehar district. okay. My qualifications is 10th pass with Okay. 78% from JUT University. Thank you. Okay. Okay. Great. Thank you, Deepak. We'll go for Nitesh. Hello, Nitesh. Nitesh, can you hear me? Nitesh Kumar. No, ma'am is not responding right now. Okay, fine. We'll go for Vivek. Sure, ma'am, sure. Hmm. Hello, Vivek. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vivek. Just say me about yourself. My name is Vivek Kumar from Hazaribagh, Jharkhand. I am pursuing fifth semester KK Polytechnic, Dhanbad. Okay. जी. Say something more, like what you have studied and everything. क्या मैम? तुमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, वो सब बोलो। फिफ्थ सेमेस्टर में बोले तो मैम डिप्लोमा का फिफ्थ सेमेस्टर में KK Polytechnic. ओके ओके फाइन। आप कहाँ के हो विवेक? हजारीबाग, झारखंड का. ओके फाइन, ग्रेट। हम जाते हैं नेक्स्ट, ओमकार। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Omkar. Tell me about yourself a bit. Myself, Omkar Lohane. I'm from Dhanbad. I'm studying in Khandoli Institute of Technology, Giridih. I had completed Okay. my matriculation in Indian Public School, Dhanbad. Okay. Fine. We'll go for Rahul Kumar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Say something about yourself. Myself, Rahul Kumar Mandal, and I'm from Dhanbad. I am pursuing diploma in electrical engineering in fifth semester, and I am from Dhanbad, studying in GP Sahibganj. Thank you. Okay, great. Okay, next one, Shekhar. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
Myself, Shekhar Kumar Mahato. I am a study at Government Polytechnic Sahibganj, 5th semester in electrical engineer. I completed 10th and 12th. I am from Okay. Dhamni, Bokaro district. Okay, great. Okay, we'll go for Subham. Hi, Shubham. नमस्ते मैम। Namaste. Tell सबसे me about पहले yourself. सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम Okay. शुभम है। मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं 19 साल का हूँ और Okay. मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता बिजनेसमैन है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज का छात्र हूँ। वर्तमान में मैं वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेम में हूँ। Okay. मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपना कोई भी काम पूरी लगन से करता हूँ। Okay. Very good. Fine. We'll go for the next one. Shubham Thakkar. Thakur, sorry. Yes, Shubham. Tell me about yourself a bit. Shubham. हाँ मैम बोलिए। नहीं नहीं शुभम तुम्हें नहीं, शुभम ठाकुर को बोल रहा है। Hello. हाँ शुभम, tell me about yourself a bit. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, my name is Shivam Thakur. I am from Dhanbad, and my college name is Government Polytechnic Sahibganj. And now I'm in 5th semester through mechanical branch. Okay, fine. Okay, Shubham. Next we'll go for Sushil. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Tell me about yourself a bit. Myself, Sushil Chandra Gautam from Dhanbad. I pursuing from mechanical engineering in Al Kabir Polytechnic. Okay. Fine. We'll go for Tushar. Hello. First of all, a very good afternoon, ma'am. Good afternoon. Myself Tushar Mittal, and I am from Dhanbad. I have completed my matriculation from June Public School 2018, and now I'm pursuing diploma engineering at Government Polytechnic Sahibganj, 6th semester. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Fine. Priyanshu, let's start it. Okay. Yeah, ma'am. Okay. तो आज ना हम लोग वो पढ़ेंगे की सक्सेस फॉर एन इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, कैसे हम लोग को सक्सेसफुल इंटरव्यू प्रिपरेशन का चांस मिल जाए, हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग सीखेंगे जॉब इंटरव्यू कैसे देते हैं और उसका सक्सेस क्या होता है सक्सेसफुल इंटरव्यू करने का, और नो योरसेल्फ, मतलब मैं कंटेंट बोल रही हूँ, ये कंटेंट हम लोग आज सीखेंगे। ओके, नो योरसेल्फ एंड टाइप ऑफ इंटरव्यूज, क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होता है और कैसे रिहर्सल किया जाए, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए, ड्रेस कोड क्या होता है। ओके, जो जो दिन में आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो, कैसे आपको क्या करना चाहिए वो, और इंटरव्यू का प्रोसेस और फॉलोअप, ये सब कुछ आज सीखेंगे। ओके, so Priyanshu, I wanted you to share this screen. Okay, ma'am. Go for the third one. Fourth. Go for the fourth one. Okay.
तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है? ओके, जब आप लोग सपोज आप जाके एक इंटरव्यू के सामने बैठे हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस हम लोग बताएंगे आज। ओके, तो ये क्या होता है बेसिकली, अभी तो वर्चुअल हो गया है नो डाउट, बट पहले ऐसे क्या होता था कि हम लोग जाते थे और एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, एक इंटरव्यू रहता था, एक एक मतलब इंटरव्यू रहता था, दोनों के ये पे हम लोग फेस टू फेस वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे और हम लोग कुछ आंसर्स देते थे, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फेस टू फेस इंटरेक्शंस का। ओके, और वहां क्या होता था, आपका क्वालिफिकेशन डिस्कस होता है, जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या पर्सिंग हो या पास आउट हो, कुछ भी हो, आपका क्वालिफिकेशन डिस्कस होता था और आपका एबिलिटी और स्किल्स भी आप उधर बताते थे। ओके, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि आपका पर्सनालिटी कैसा है क्या नहीं। तो बेसिकली सबको अगर मिला दो ना, तो ये एक ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप को बेच रहे हो। ओके, टू सेल योरसेल्फ, आपको पता होना चाहिए आप अपने आप को कैसे बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे सा बात बोलूंगी, अगर मान लो एक कोलगेट है। ओके, हम लोग को कैसे पता चलता है कि इससे होने से हम लोग का दांत साफ होगा, कैसे, मतलब ये चीजें सब कैसे पता चलती है, वो एडवर्टाइज से, राइट। तो सेम बात वैसे है, इंटरव्यू को हम नहीं पता, मतलब इंटरव्यूअर हम लोगों को नहीं जानता, हमें इंटरव्यू को बेचना है अपने आप को। ओके, हम लोग अपना ये स्किल है, मेरा ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये वाला एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सकता हूँ, वो एनवायरनमेंट में अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर हम पूरा चीजें इंटरव्यू को नहीं बोलेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग दो चीज करते हैं, एक है रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं जो कि हम लोग का सब कुछ लिखा होता है, और सेकंड बात है कि हम लोग अपने मतलब खुद भी प्रिपेयर होते हैं कि वो सारा चीज जो इंटरव्यू में मतलब जो रिज्यूम में लिखा है, और वो सब माइंडसेट लेके इंटरव्यू के पास जाते हैं। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन प्रियंशु। और हमेशा एक देखो, मतलब इसका एक की ले लो कि मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके तुम लोग जाओगे और बोलोगे हाँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए हर चीजों को लेके, क्योंकि देखो अभी अगर तुम पॉजिटिव नहीं रुकोगे, मतलब तुम्हें वो झील नहीं दिखेगा, तो इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा। ओके, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए आपके आपसे, इंटरव्यू को लगना चाहिए हाँ ये बंदा कर सकता है, देन ओनली वो इंटरव्यूअर आपको जानना स्टार्ट करेगा, राइट। और अगर अभी सोचो, मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, आप अगर मुझे नहीं देख के कहीं ऊपर देख रहे हो, तो वो चीज भी गलत होता है। ओके, हमेशा एक आई कांटेक्ट होना चाहिए इंटरव्यू के साथ, क्योंकि सामने वाला को भी लगेगा कि आप लोग उनके साथ एंगेज हो रहे हो, एटलीस्ट बात कर रहे हो। बात करने के टाइम अगर तुम इधर उधर देखोगे, तो वो इंटरव्यू को भी तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये बंदा कर सकता है करके, और आप लोग भी कॉन्फिडेंट वे पे आंसर नहीं दे पाओगे। तो यस, आई कांटेक्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, तो और एक चीज है जो, देखो, पे अटेंशन टू फिजिकल अपीयरेंस। ओके, आप लोग इंटरव्यू जाते हो, एक फॉर्मल चीजें होती है, मतलब एक ड्रेस कोड होता है उसका, अगर आप वो पहन के नहीं जाते हो, देन मतलब वो इंटरव्यू को भी नहीं लगेगा कि आप लोग इंटरव्यू पे बैठे हो। जैसे मंदिर जाते हैं या कुछ और एक प्लेस जाते हैं, तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, राइट। तो सिमिलरली अगर आप इंटरव्यू जाते हैं तो उसका भी एक सर्टेन ड्रेस कोड होता है, नहीं तो वो चीजें एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। ओके, और एक बात होता है, सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर XYZ कंपनी। ओके, तो वो कंपनी के बारे में आपको पता होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ओके, अगर आप जो कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, उधर आप मतलब वो कंपनी के बारे में ही आप नहीं जानते हो, तो इंटरव्यूअर भी मतलब उसको भी लगना चाहिए ना कि आपने जो इंटरव्यू देने आया है, तो वो बंदा और बंदी या बंदी कोई भी अच्छा है कि वो सारा चीजें पढ़ के आया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, तो वो वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ओके, देन देखो, अभी अगर मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, तो जैसे कि डोंट टॉक योरसेल्फ आउट ऑफ ए जॉब। ओके, मतलब वो इंटरव्यू के साथ अगर तुम जॉब के लिए जाते हो ना, सिर्फ जॉब का ही बात बोलो। मेरे घर पे ऐसा है, सब ऐसे बैठे हैं, सब ऐसे, ये वो सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप जॉब के लिए गए हो, जॉब का ही रिलेटेड बात करके आओ, वो एक प्रोफेशन
प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, तो उस मतलब बिहेवियर पे जाओगे ना, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रो करता है। ओके, तो और एक बात कि अगर डोंट कीप योर इंटरव्यूअर वेटिंग, मतलब अगर इंटरव्यू तुम्हें कुछ पूछता है, ओके, आप 5 मिनट लेते हो सोचने के लिए, उतना नहीं सोचना चाहिए। यस, 30 सेकेंड 40 सेकेंड इज एनफ, बट आप अगर सोचते हो वो अच्छी बात है, बट ज्यादा टाइम अगर वो पूछते रहेंगे 2-3 बार वही क्वेश्चन और आप लोग वेट कराते रहोगे, वो बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। ओके, अभी तक का किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी तक का सबको समझ में आया? एनीवन? अगर किसी को भी कुछ अभी इतना तक डाउट है तो प्लीज रेज कर दो अपना हैंड, ताकि मैं एक एक करके पूछ पाऊं। किसी को भी कुछ डाउट आया, और एल्स विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ तुषार बोलो। I just wanted to ask you something. Actually, just imagine we are in between an interview, and the Okay. interviewer asks you some questions, and the answer you don't know. So in Okay. that scenario, what should we do? सी आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको आंसर नहीं आता है, बहुत अच्छे से ये बोल सकते हो कि सर सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। आप आराम से मना कर सकते हो, आप ब्लफ नहीं कर सकते। ओके, अगर सोचो कि एक जनरल क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आता है, वो इंटरव्यू को भी पता है, मतलब सोचो कि इंटरव्यू को आता है, वो वाला चीज है। अगर आप ब्लफ करोगे, उसको पता चल जाएगा वो ब्लफ कर रहा है। ओके, अभी सोचो मैं अगर तुम्हें 5 क्वेश्चन रैंडमली पूछ रही हूँ और 5 क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट अगर हाँ इन केस कुछ एक नहीं आता है, तो जेंटली से सॉरी सर, आई डोंट नो दैट, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, Okay, ma'am. Thanks for your time. इट्स ओके, नेक्स्ट जाते हैं। ओके, अभी अगर बी प्रिपेयर्ड। ओके, अभी अगर आप लोग इंटरव्यू जाते हो, मैं हमेशा वही सोच रही हूँ कि अगर सपोज एक आता है, मतलब कोई आता है जॉब इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, देन यू वोंट बी एबल टू से एनीथिंग। आप हमेशा गलत ही बोलोगे, कुछ ना कुछ बोलोगे। देखो, आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्या पूछने वाला है। अभी टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कि वही पूछ रहे हैं फर्स्ट पे, तो वो वाला एटलीस्ट आपको ऐसे होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने बारे में अच्छे से बोल पाऊं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला था आपको कि यू नीड टू सेल योरसेल्फ। ओके, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। एक ये कि आपके पास एक एक्स्ट्रा रिज्यूम भी होना चाहिए हाथ पे। ओके, सो आपका जो रेफरेंस होगा, सपोज आपको कोई रेफर कर रहा है तो आपका रेफरेंस है, तो वो भी रहेगा, वो भी रहना चाहिए आपके पास में। ओके, और थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब ना प्रिपरेशन के अंडर पे आता है, तो आपको उस वे पे प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो अगर मान लो कि आप दोनों बैठे हो, एक क्वेश्चन के बाद वो इंटरव्यूअर साइलेंट हो गया, ओके, थोड़ा चुप हो गया, तो वो टाइम पे आप लोगों को चुप ही रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 मिनट। ज्यादा टाइम अगर साइलेंट होगा तो देन यू हैव टू आस्क सर व्हाट अबाउट नेक्स्ट। ओके, अगर थोड़ा टाइम वो साइलेंट ले रहा है, मतलब आपको उधर ना कामली, मतलब ऐसे नहीं कि आप डर जाओ, कामली क्या हुआ है करके वो जानना चाहिए कि सर व्हाट नेक्स्ट, आप पूछ सकते हो। बट वो साइलेंस मोर इम्पोर्टेंट है, कि उस साइलेंस में भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो इंटरव्यू जज करता रहता है। ओके, फिर और एक बात, नो योर रिज्यूम। ओके, आप जो रिज्यूम बनाते हो, जो भी रिज्यूम बनाए हो, सोचो आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा, आपका क्वालिफिकेशन लिखा, आपका कोई प्रोजेक्ट ऐड किया, नहीं तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कुछ ना कुछ आप सपोज उधर ऐड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐड कर रहे हो उधर, इसका मतलब आप लोगों को वो पता होना चाहिए, आपके रिज्यूम में क्या कुछ है वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग लिखा और बोल कुछ अलग रहे हो आप। मतलब देखो, अगर अभी कोलगेट का फॉर एग्जांपल, जो मैंने कोलगेट का एग्जांपल दिया, कोलगेट में ऊपर कुछ लिखा होगा, काम कुछ और कर रहा होगा, तो आपका वो कोलगेट बिकेगा क्या ज्यादा टाइम तक? नहीं बिकेगा। तो सिमिलरली अगर उधर कुछ लिखा अलग होगा, बोल कुछ अलग रहे होगे, या तुम्हारा मिसमैच हो रहा होगा, वो अच्छा नहीं होता है। आप जो भी रिज्यूम पे लिखे होते हो, वो सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके,
अभी सोचो मैंने आपको बोला कि आप आके आज इंटरव्यू है और आप लोग 10 बजे पहुंच जाना इंटरव्यू को। ओके, शार्प 10 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो अगर मैंने शार्प 10 बजे बोला है, देन वो मतलब स्टूडेंट्स लोग को क्या करना चाहिए, वो लोग 15 to 20 मिनट्स पहले आना चाहिए। ओके, क्योंकि वो मतलब देखो अभी अगर 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, हमेशा आप टाइम हाथ पे रख के आना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि अगर आपको 3 बजे बोला जाए मतलब 2:55 तक या 2:45 तक आपको उधर वो प्लेस पे होना चाहिए। तो ही आपका जो इम्प्रेशन होता है ना, वो एक पॉजिटिव वे पे दिखाता है कि आप कितना मतलब जॉब के लिए कितना सोच रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है आपको 3 बजे या 10 बजे बोला जाए और आप आधा घंटा लेट आओ। हमेशा जल्दी आना एक की पॉइंट होता है। ओके, और हमेशा शांत रहना, ज्यादा नहीं कि हाँ ये वाला क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, वैसे नहीं पूछा जाता इंटरव्यू प्लेसेस पे। ओके, हमेशा काम रुको, धीरे धीरे कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन की क्या किया जाएगा, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो कामली वो भी वो टाइम पे जहां आप लोग बैठे भी होते हो ना, वो टाइम पे भी इंटरव्यूअर आपको जज करता है। ओके, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोग काम रुको और जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है धीरे धीरे आप वो चीजों को देख सकते हो। ओके, और लिसन अटेंटिवली, वो कुछ भी पॉइंट बोलते हैं ना, सुनो अच्छे से, क्योंकि वो पॉइंट अगर आप एक भी मिस कर दिए वो पॉइंट, हो सकता है कि मेन इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। मतलब इंटरव्यू जो प्लेस पे होता है ना, वो जगह पे बहुत अटेंटिव रहना बहुत नीडेड है। ओके, अगर अटेंटिव नहीं रुकोगे तो आपका सब कुछ जो भी आप लोग सोच रहे होगे, मतलब जो भी मतलब होगा ना मेन चीजें, आप वो मिस कर दोगे और आपको उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन की वजह से आपको इंटरव्यू भी मतलब क्रैक ना हो। ओके, तो वो चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिसन अटेंटिवली। ओके, और नेक्स्ट पार्ट है शो कॉन्फिडेंट। देखो यहाँ दो चीजें हैं, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में डिफरेंस है। ओके, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, लोगों को बिल्कुल दिख जाता है वो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, सिर्फ आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ओके, जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, लोग बोलने लगते हैं कि देखो कैसे हो रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट में, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके मन से आपको लगेगा नहीं, आई कैन डू दैट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू। ओके, तो ये चीजें में ना बहुत थिन लाइन का फर्क है। तो आपको आइदर इधर नहीं तो उधर। ओके, तो वो चीजें मेंटेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे जितना भी आता होगा, डाउन टू अर्थ, धीरे से कामली एवरीथिंग, आपको सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट। अभी क्या है, अभी देखो, नो योरसेल्फ। ओके, आप लोग क्या हो, आपको खुद को पता होना चाहिए। आपका स्किल क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या एबिलिटी है, आपका लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सा बात है कि देखो, अगर आप बोलोगे, अगर कोई एक डॉक्टर है उसको बोलोगे तुम जाओ इंजीनियरिंग करो, वो होगा क्या? खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, आपको वही मैं बोल रही हूँ कि अभी देखो, एक बंदा है जिसका ना स्किल्स है, स्किल सपोज ड्राइंग, पेंसिल आर्ट्स है। ओके, तो आपका वो स्किल पे ऐड होता है कि आप बोल सकते हो कि मैं ना वो डिजाइन करता हूँ, मैं डिजिटल डिजाइन करता हूँ, नहीं तो मैं डिजिटल आर्ट करता हूँ। कुछ भी आपको पता होना चाहिए, आपका स्किल क्या है, वैल्यू क्या है, आपको किस चीजों पे इंटरेस्ट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सेकंड बात है कि मतलब देखो, वो स्किल को जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जांपल्स भी देना चाहिए। अब अगर सोचो आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, सोच लो पॉलिटिक्स में, तो आपको ये एग्जांपल देना चाहिए कि मैंने इस कॉलेज पे मेरा जो चल रहा था, क्या सब जो पॉलिटिकल सब चल रहा था, मैंने उस पे पार्ट लिया था और आई वाज ए गुड टीम प्लेयर, और इस पे मुझे पता चला कि मैं पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा हूँ। तो वो चीजों को मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोग सेट करो। ये तब होता है जब आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो। प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने जो मैंने बोला था, तो इस वे पे ही आप प्रिपेयर करते हो। ओके, तो अभी देखो और एक बात, जैसे अभी मैं पकड़ लूं, सबका नाम ले लूं, जैसे दीपक हो गया, ओमकार हो गया, राहुल हो गया, सब कोई सोचो एक ही जैसा रिज्यूम बनाए हैं, राइट?
सोचो सबका कुछ कुछ लिखा हुआ है, सब जैसे कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, तो सब एक जैसा बनाए हुए हैं, सोचो। तो आप कैसे सोचोगे कि इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करे? इंटरव्यू उसको सिलेक्ट करता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, कि उस जिसमें उसको यूनिकनेस दिखता है। ओके, यूनिकनेस कब दिखेगा? जब आप ना थोड़ा चीजों को एलैबोरेट करके बोलोगे। आपका देखो, बी योरसेल्फ, आप जैसे हो आप वैसे रुको, क्योंकि एवरीवन इंडिविजुअली इज ए यूनिक पर्सन, राइट? कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ स्किल्स रहता है लोगों के पास, तो वो मतलब दिखा पाना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो इसीलिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ना हमेशा कॉमन सेंस यूज करना। ऐसा नहीं कि कोई पूछे 2+2 कितना है, आप बोल दो 5 या 10, ऐसा नहीं होता। एक कॉमन सेंस यूज करना चाहिए आप लोगों को। आप हमेशा वो टेंजेंट पे रुकना। ओके, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू? जैसे स्क्रीनिंग हो गया, देन GDPI हो गया, देन पैनल इंटरव्यूज हो गया, ग्रुप इंटरव्यूज हो गया, ऐसे काइंड ऑफ बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। ओके, देन Priyanshu, next one. Next. ओके, अब देखो, अभी क्या करना है? अभी देखो, अगर तुम्हारे पास रिज्यूम है तो रिज्यूम से ही वो इंटरव्यूअर तुम्हें क्वेश्चन पूछता है। ओके, मतलब उसी में से ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ना वो कंटेंट के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाओ। अच्छे से पहले इंटरव्यू जाने से पहले अच्छे से तो आप लोगों का रिज्यूम पढ़ो। जैसे कि अभी देखो टॉपिक मतलब क्वेश्चन हो गया, क्या पूछ रहे हैं? व्हाई शुड वी हायर यू? टेल मी अबाउट वन ऑफ योर वीकनेसेस। अगर कोई ऐसा पूछता है ना, टेल मी अबाउट वन ऑफ योर वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या होता है कि एक मतलब, हाँ, हम लोग का डर है अंदर का, बट आपको वो नहीं बोलना है कि डर है, बट आपको ये बोलना है कि डर है बट आई एम ओवरकमिंग इट, कि मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ वो भी बताना चाहिए आपको। मुझे इस पे डर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश नहीं होता है, बट मैं उसका कोर्स ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से इंग्लिश प्रिपेयर कर पाऊँ। तो वो क्या होता है, वो वीकनेस भी आपका स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस वे पे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही आंसर देना है। नेक्स्ट, ये आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चंस क्या मतलब देखो, क्वेश्चंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरव्यू स्टार्टर क्वेश्चंस, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट, ओके, रिहर्स। मतलब अभी देखो, अभी सोचो आपने प्रिपेयर कर दिया, सब कुछ हो गया। अभी इंटरव्यू को जाने से पहले हम लोग को मतलब कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ या ये चीजें करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं? तो वो सब कैसे पता चलेगा? वो सब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस कैसे करोगे? रिकॉर्डर होगा आपके पास, फोन का रिकॉर्डर भी होगा। आप सोचो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ कोई पूछा, और रिकॉर्ड ऑन करो, और आपका जो आंसर होता है ना, आप बोलो। बोलने के बाद आप पॉज करके फिर सुनो कि आप क्या बोले और कहाँ मिस्टेक हुआ आपका। आप लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। एक बार आप करोगे ये चीजें, और वो बहुत हद तक ये हेल्प करता है। ओके, जैसे कि रिकॉर्ड प्ले हो जाता है, नहीं तो मिरर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया। आप मिरर के सामने खड़े होके कुछ ना कुछ बकबक कर सकते हो इंग्लिश पे। ओके, जैसे कि हाँ, ये पूछे आपको ये बोलना है, वो बोलना है। तो वंस आप एक बार फॉर्म पे आ जाओगे ना, देन यू कैन से एनीथिंग एल्स। ओके, आपको जो भी पूछा जाएगा ना, तब आप बोल सकते हो, बट आपको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। आप फ्रेंड्स या फैमिली या घर पे भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पे बात कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, आप एक्वेंटेड हो जाए इंग्लिश से। ओके, इंग्लिश में भी बोलना जरूरी है क्या? देखो, और एक बात है, अभी अगर हिंदी तुम में तो इंग्लिश बोल में सकते हैं। डेफिनेटली आप बोल सकते हो, नो इश्यूज। अगर आपको देखो, अभी अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको उसके बाद बोलना पड़े। अगर सोचो तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो वो जगह पे जाओगे और बोलोगे, सर अगर बोल रहे हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो तुम बोलना कि सर कैन आई से इन हिंदी? अगर वो हाँ बोलते हैं, वेल एंड गुड है। अगर नहीं बोलते हैं ना, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वो चीजें हो, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ आपको स्पोकन इंग्लिश आना चाहिए, बट बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। एटलीस्ट अपने बारे में बोल पाओ
नहीं तो चीजें बोल पाए। इसीलिए तो अब एक ये अरेंज किया है ताकि आपको ये सब चीजें बोल पाए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको प्रिपेयर करा पाए। समझ रहे हो बात? आप अगर बाहर जाओगे, सोचो वो जगह जाते हो वहां इंग्लिश ही नहीं बोला जाता, तब क्या, सॉरी हिंदी ही नहीं बोला जाता, तब क्या करोगे तुम लोग? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। समझ रहे हो? मतलब एटलीस्ट यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और एल्स आपको थोड़ा बहुत मतलब वो आपका रिज्यूमे जो है आप वो बोल पाओ कि ये है, एंड सर कैन आई से इन हिंदी, सो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। तो आप हिंदी पे स्टार्ट कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। ओके फाइन, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके तो अभी ये सब देख लो आप लोग। इधर है आपको वो बिजनेस लोकेशन, अब अगर जाते हो प्रिपेयर होते हो, फैमिलियर विद बिजनेस लोकेशन, कॉपी ऑफ अपडेटेड, मतलब ये सब ना आपको लेके जाना चाहिए जहां आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। आपको जो लोकेशन पे उस इंटरव्यू है आपको पता होना चाहिए, प्रीवियसली एक दिन पहले ही आपको पता होना चाहिए वो लोकेशन कहाँ है और मुझे कैसे पहुंचना है। आपका एक अपडेटेड रिज्यूम भी आपके साथ में होना चाहिए। ओके और फिर वो जो क्वेश्चन, मतलब देखो और एक बात, अगर इंटरव्यू ले रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है, लास्ट में ऐसे पूछता है इंटरव्यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, लास्ट को पूछता है। आपके पास ना एक क्वेश्चन होना चाहिए। ओके अगर आप अच्छे से सब कुछ बोल देते हो, आपके पास होना चाहिए कि सर कैन आई नो द फर्दर प्रोसेसेस, ऐसे पूछना चाहिए कि नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या है, मुझे नेक्स्ट ये इंटरव्यू के बाद फिर मुझे क्या मतलब क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कि मुझे इंटीमेशन आएगा, कि मुझे मेल आएगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप पूछ सकते हो वो इंटरव्यू को। ओके एंड एक क्वेश्चन रहना चाहिए हमेशा, और एक पॉजिटिव, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ओके मैम ओके रिलेटेड जॉब ना, क्या क्या? रिलेटेड विद द जॉब ना मैम, हाँ जॉब हाँ से रिलेटेड रिलेटेड होना होता है। चाहिए, क्या क्या क्या? जॉब से रिलेटेड ही होना चाहिए ना क्वेश्चन मैम। लास्ट को तो हाँ मैम। हाँ, तुम लोग थोड़ी ऐसे पूछोगे सर आपके मतलब आपका घर का है, आप ऐसे नहीं पूछोगे ना, नो आप मैम, वही जैसे पूछोगे। हम्म अबाउट उनके नाम पूछ सकते हैं, उनके हायर डिपार्टमेंट में कौन है, इस टाइप से पूछ सकते हैं ना। देखो मैं एक बात बोल रही हूँ, मतलब अभी अगर आप इंटरव्यू रूम को जाते हो ना, वो इंटरव्यू क्या करता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो कंपनी का कौन है वो भी बताता है। ओके फिर से अगर हम लोग उसका नाम पूछेंगे जी तो वो, अगर तुम्हें अगर इंटरव्यू नहीं बोला होगा ना तो डेफिनेटली आप लास्ट को पूछ सकते हो। ओके मतलब यस इंटरव्यू मैम। सपोज अपना उसका नाम नहीं बोला तो आप लास्ट को पूछ सकते हो सर आपका नाम क्या है। ओके तो अगर भूल दिया होगा यस तो मैम। फिर से पूछने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हो कि सर हम लोग का फर्दर प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके आपका जो भी क्वेरीज है, सर मुझे क्या करना है कंपनी में, क्या नहीं, मेरा रोल क्या रहेगा, आप पूछ सकते हो कुछ ना कुछ। ओके ये भी पूछ सकते ना ओके कि मैम। कंपनी का सेल किस में सबसे ज्यादा है, किस में सबसे कम है। डेफिनेटली आपको जो जानना होगा ना, कंपनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो भी होगा ना, आप पूछ सकते हो। तो कंपनी को फिर पटाना पड़ेगा, बोलने का आपका सेल बढ़ा देंगे, हम ले लीजिए। नहीं नहीं ऐसे बोलोगे तो वो सेल सिर्फ तुम्हारे तो लिए थोड़ी बढ़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो अभी अगर मैं क्या बोलूंगी, अभी अगर मतलब अभी अगर बोलोगे सर मुझे ले लीजिए आपका सेल बढ़ जाएगा, तो ये तो बहुत जन है, उसके पास तो 1000 बच्चे हैं। अगर सोचो तुम 5 क्वेश्चन वो पूछा, तुम क्वेश्चन नहीं बता पाए और लास्ट में ये बोल रहे हो कि सर मैं, आप मुझे ले लीजिए मैं सेल्स बढ़ा दूंगा, तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि इसका कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो मैम सिचुएशन अगर हम लोग सेल से रिलेटेड आई मीन इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछते हैं या फिर कुछ भी हम लोग ऐसे टाइप का पूछते हैं, तो वो लोग को लगेगा कि हम लोग ज्यादा चेप नहीं हो रहे मैम, कि कुछ ज्यादा फेक शो कर रहे हैं। किस चीज पे? जैसे अभी शुभम बोला ना कि हम लोग सेल से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कौन सा है। एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो लोग ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये सब देखो तुम जॉब रिलेटेड पूछ सकते हो, मतलब कंपनी रिलेटेड पूछ सकते हो, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर मुझे ले लो मैं पूरा पूरा कंपनी को ही उठा दूंगा, पूरा सेल्स बढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी यू नेवर नो आपका रोल क्या है। ओके यू डोंट नो इवन, आप जो रोल के लिए अप्लाई करते हो उसका एक पार्ट आपको मिलेगा, तो आपको नहीं पता, तो ये चीजें अगर आप बोलोगे तो वो चीजें एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ओके सो वी शुड नॉट से दैट। ओके नेक्स्ट पे अंशु।
ओके, रूल ऑफ थंब ड्रेस कोड। ओके, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? एक कंफर्टेबल होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रियांशु, देखो शूज, सॉक्स, बेल्ट और पर्स, ये सब तो रहना ही रहना चाहिए आप लोगों के पास। ओके, ताकि एटलीस्ट एक फॉर्मल लुक क्रिएट करे आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शूज है और सॉक्स नहीं है, आप खाली पहन के चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फॉर्मल शूज होना चाहिए। ओके, वो बूट्स या कोई स्पोर्ट्स वाला ये नहीं चलेगा, फॉर्मल्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। और ऐसा नहीं कि उठे और मतलब डे ऑफ द बेल्ट इंटरव्यू कैसा होना चाहिए मैम? आप कोई सा भी पहनो, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल बेल्ट होना चाहिए जैसे कि नॉर्मल फॉर्मल एट्रीब्यूट जैसे होता है। ओके, तो अभी डे ऑफ द इंटरव्यू कैसे होना चाहिए? आप फ्रेश हो, मतलब आप नहा धो के अच्छे से ग्रूम होके आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठे और भागे इंटरव्यू को, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से आपके ड्रेसअप को आपको मतलब आपके वो जो अपीयरेंस को थोड़ा सा टाइम दो, ताकि एटलीस्ट आप जब जाओ वेल ग्रूम लोगो, अच्छे से चोटी कोम किए, अच्छे से बैठे सबके सामने, तो उस वे का प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, फ्रेश शावर और वेल ग्रूम। ओके, और क्या, ज्यादा कॉफी वॉफी मत पी लेना उधर इंटरव्यू में, ताकि एटलीस्ट आपको मतलब ये हो जाएगा। तो इंटरव्यू के पहले तो वो मत पीना, एटलीस्ट अच्छे से पानी पीना और आराम से जाना इंटरव्यू देने। 15 मैम मिनट पहले पहुंचना। मैम हेयर्स में हेयर स्टाइल वगैरह अलाउड है वहाँ पे, जैसे लॉन्ग हेयर्स वगैरह, बट नो एक नो, करेक्ट ऑर्डर में। क्या क्या? लेकिन मैम वो मतलब बोलते हैं ना, शायद सेटल किया हुआ बाल, लेकिन एक हेयर स्टाइल। देखो मैं तुम्हें बोलूंगी कि लॉन्ग हेयर्स और ऐसे जाओगे ना तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, बट वेल ग्रूम जैसे जैसे कि इंटरव्यू को जैसे ही जाते हैं, ओके, तो वैसा रहोगे तो वो ज्यादा थोड़ा आई कैची होता है। ओके, ऐसा नहीं कि थोड़ा लॉन्ग किए फिर सेट करके पीछे बांध के गए, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, छोटा और बाल मैम सूट बियर्ड, नहीं करता है ना मैम, यही दिक्कत है। अब ना ये नेक्स्ट क्लास में आपको डिसाइड होगा ना, मतलब मैं आपको वो फोटोज के वे पे दिखा दूंगी कि ऐसे जाना चाहिए इंटरव्यू को। ओके, और मैम बियर्ड, परफ्यूम लगा सकते हैं ना मैम? क्या? परफ्यूम लगा मैम के बियर्ड, जाएंगे ना? वो आपका चॉइसेस है, वो चलेगा, नो इश्यूज, वो सब चलेगा। मैम हमको बोले कि शुभम को। दोनों को बोल रही हूँ मैं, जो भी पूछ रहा है, मतलब जो भी, सेम ही क्वेश्चन है ना। नहीं मैम, हम तो बियर्ड के लिए पूछे। बियर्ड लुक ले सकते हो, बट इवन लाइक आई विल से वेल ग्रूम, मतलब क्लासिक पूरा फॉर्म है अच्छे मैम, से क्लीन ये होना चाहिए। हाँ, अच्छे से ट्रिम्ड मैम। यस। बियर्ड चिकना होना चाहिए। भाई बियर्ड मतलब दाढ़ी है भाई, चिकना होगा तो ओके उसको ओके ओके ओके, बस बस, अभी हम बियर्ड लोग बोलते हैं। बियर्ड का ये नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आप लोग को दिखा देंगे कि प्रॉपर लुक क्या होता है। ओके, प्रियांशु, नेक्स्ट वन। देखो कैजुअल कन्वर्सेशन क्या होता है और बिजनेस बिजनेस का क्या होता है, वो सब इधर लिखा हुआ है। जैसे कि हाउ वाज द ट्रैफिक, डिड यू फाइंड अस ओके। तो ये सब ना जनरल क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर आपको पूछता है। प्रियांशु, नेक्स्ट। आप लोग ये इस प्रोसेस के मतलब देखो, ऐसे क्लोजिंग द इंटरव्यू आप क्या कर सकते हो? थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग, आप एक हैंडशेक दे सकते हो आराम से। ओके, अभी तो चूंकि कोविड का टाइम है तो हैंडशेक नहीं दे सकते, तो वर्चुअली सब कुछ होगा, तो थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है जो मतलब कैसे हैंडल किया जाता है, क्या कुछ ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये बिहेवियरल क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, इसका ये पीडीएफ सब, भेज दीजिएगा मैम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। तो हम लोग इंडिविजुअली अगर चाहो तो आप प्रियांशु से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये एक बिहेवियर क्वेश्चंस है, ये सब सिचुएशन आपको दिया जाता है, इंटरव्यूअर ऐसे पूछता है आपको ज्यादा जानने के लिए। ओके, मैम इसका आंसर भी भेज दीजिएगा। इसका आंसर तो मैं लिख के ऐसे भेज तो नहीं सकती, बट यस डेफिनेटली आप लोग ये थोड़ा पढ़ाई करो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब आपको एक डेमो दे सकती हूँ कि ऐसे ऐसे आप कैसे बोल सकते हो। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट प्रियांशु।
और 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर टू बी योरसेल्फ, एवरीवन इज नर्वस, बी प्रिपेयर्ड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर इंटरव्यू गए और आपको नर्वसनेस ना हो, सबको ही नर्वस होते हैं। आप सिर्फ ये याद रखो कि आप कौन हो, आपको वो पता होना चाहिए। सबको ही नर्वस होता है, जनरल बात है, वो डरने की बात नहीं है। और बी प्रिपेयर, ओके, क्या चीज क्या हाँ बोलो मैम, वो उसका नहीं आपको बोलेंगे प्रिपेयर, हम कौन है, बस गजनी थोड़ी ना है। बस बस ठीक है। फिर द नेक्स्ट वन इज लाइक, प्रियांशु नेक्स्ट, खत्म हो गया हम लोग का। ऑल द बेस्ट सबको। और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, वो मंडे होगा, ओके। वो क्लास पे हम लोग एक डेमो दिखाने का कोशिश करेंगे कि आपको आपका वो ड्रेस का एट्रीब्यूट कैसे दिखना चाहिए, कैसे लुक होने से आपको प्रॉपर मिलेगा, आपको प्रॉपर एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा। तो उस लुक के ऊपर हम लोग उधर भी एक आपको स्लाइड ऐड कर देंगे, ओके। Priyanshu, I guess everything is done right now. Yes, ma'am. और किसी को कुछ पूछना है No, related ma'am. to this thing? Okay, fine. Ma'am, we Thank you. will discuss on Monday about the topic. हाँ, आप लोग वो जो भी मतलब जो भी आज हम लोग डिस्कस किया, अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट होगा तो आपका मंडे क्लियर हो जाएगा वो सब डाउट, ओके। और आपका जो भी है वो आपको एक सैंपल मिल जाएगा कि कैसे आपको दिखना चाहिए इंटरव्यू में, ओके। Yes, फाइन, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। Priyanshu, let's end the meeting. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you everyone. Okay. Thank you everyone for attending it. And yes, you can leave the meeting.